السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات اپنے اپنے مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ سب لوگ اپنے مائک آن کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے، کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی کل چھٹی تھی، آپ کا ویکنڈ تھا، آپ کو بہت ٹائم ملا، اور آپ لوگوں نے جو ہوم ورک میں بھیجا تھا، بہت سے میں نے کلپس وغیرہ بھیجائے تھے گروپ میں، کیا کیا چیزیں بھیجی تھی، دعا بھی بھیجی تھی تاکہ آپ لوگ یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ، اور جو ہے دوسری مختصر بہت سی چیزیں اور بھی بھیجی تھی، حدیثیں بھی بھیجی تھی۔ آپ لوگوں نے اس کو مطالعہ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، اس پہ غور و فکر، اور پھر سب سے بڑھ کے اس میں جو ہوم ورک تھا وہ آپ کا جو ہمارا جو پچھلا لیسن ہم شروع کرے تھے، وہ لیسن کا جو 3 پیج پڑھے تھے ہم لوگ، وہ لیسن میں 3 پیج پڑھے تھے، اس سے نورانی قاعدے سے 3 پیج پڑھے تھے، اور آپ لوگوں کو میں پڑھ کے سنایا تھا، اور پھر میں نے وائس میسج بھی بھیجا تھا کہ آپ اس کو پڑھ کے جو ہے اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں، تو اور جو ہے اس میں دیکھ بھی لیں۔ تو یہ ہمارا جو سبق تھا جس کا نام تھا حرکات ثلاثہ، ہمارے سبق کا نام کیا تھا؟ حرکات ثلاثہ۔ پہلے ہمارا فرسٹ لیسن کا نام ہے حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ بولتے ہیں زبر زیر دیکھیے میں نے سب کے مائک بند کر دیے ہیں، آپ لوگ جو ہے دعا پڑھنے کے بعد اپنے مائک بند کر لیں تاکہ آپ کے گھروں کی گفتگو جو ہے کلاس میں جو ہے سنے نہیں آئے اور ڈسٹرب نہیں ہو کلاس کو۔ ہر آدمی دیکھتا رہے میرا مائک کھلا تو نہیں ہے، میرا کیمرہ کھلا تو نہیں ہے۔ کیمروں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیمرے سے کیا ہوتا، آپ کا پروگرام کا پاور کم ہو جاتا، کیونکہ کیمرے کو بہت پاور چاہیے، تو خواہ پاور کم کر دے کے کیمرے ریکارڈنگ کو اور دوسرے چیزوں کو، کلاس کی اناؤنسمنٹ کو، کلاس میں جو وائس ہے وہ سب کو کم کر دیتے کیمرے، تو پوری قوت کھینچ لیتے۔ تو ہم کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، جن کے کیمرے کھلے ہیں بند کر لیں۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے کیمرے کھلے ہیں، ہم کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور صرف میرا مائک کھلا رہے گا کیونکہ میں بات کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ کو سبق پڑھاؤں گا تو آپ اپنا مائک کھول لینا دیں۔ تو ابھی تو آپ بھی مائک بھی بند کریں اور کیمرے بھی بند کریں۔ ابھی بھی 5-6 لوگوں کے کیمرے کھلے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جب بھی آپ اسکرین پر ٹچ کریں گے 2 بار
तो नीचे 3-4 ऑप्शन खुलेंगे। पहला रहेगा माइक, आप उस पे उंगली लगाएंगे तो वो बंद होगा, फिर उंगली लगाएंगे तो खुलेगा, उसको उस पर निशानी भी आएगी बंद होने की और खुलने की। उसके बाद जो कैमरा है, कैमरा पे आप टच करेंगे तो एक बार तो कैमरा बंद हो जाएगा, फिर एक बार टच करेंगे तो खुल जाएगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसा बंद करना है ना। फिर ये जो आपके कैमरे खुले हैं, आप लोग बंद करिए अपने कैमरे। फिर उसके बाद ऑप्शन है, उसके बाद जो है पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन है, आप वो दबाएंगे तो आपके पास पूरे क्लास में लोगों की लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम भी नजर आएगा उसमें। हाँ, और आपके नाम के साथ माइक खुला है या बंद है, कैमरा खुला है या बंद है, वो भी दिखाएगा। तो ये जो आपके नाम यहाँ अपियर हो रहे हैं, ये नाम आप सब लोग जाके अपने अपने फोन में अपना फुल नेम फिट करें। अपना फुल नेम, सही जो नाम है आपका, आप वो फिट करें, क्योंकि ये नाम से मैं लिस्ट तैयार करने वाला हूँ। आपका नाम उसमें सही होना चाहिए, तो आप उसमें अपने नामों का करेक्शन कर दें। अगर सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो उसमें करेक्शन करें। बहुत से लोगों के नामों की जगह फोन का नाम आ रहा है, फोन का मॉडल अपीयर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जब से फोन लिया है अपना नाम उसमें फिट नहीं किया है। तो प्लीज अपना नाम फिट करें, फोन का नंबर निकालें। आप ये तमाम चीजें जो है आजकल बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में बच्चों को जूम पे पढ़ाते थे, तो बच्चों को जूम ऑपरेट करना अच्छी तरीके से आता। या किसी जानने वाले से आप उसको चेंज कराएं। मैं रोज बोल रहा हूँ, कल जब मैं आपकी लिस्ट देखूंगा तो कहीं भी टेलीफोन का नाम नहीं रहना, आपका फुल नेम रहना, आपका फुल नेम रहना एज इट इज, ताकि मैं वहां से नाम उठा के लिस्ट तैयार करूं और फिर मैं जो है उसका जो है क्लास में आप लोगों को बुलाऊं पढ़ने के लिए, है ना। तो सब लोग क्या करें, जाके देखें आपका। एक साहब का नाम है मोहम्मद, मेरे को क्या मालूम यार, मोहम्मद पूरा नाम लिखे ना, मोहसिन पूरा नाम लिखे, मुबीन पूरा नाम लिखे भाई। और बहुत बहुत सी जगह टेलीफोन के नाम लिखे हुए हैं, टेलीफोनों के मॉडल लिखे हुए हैं। प्लीज आप लोग अपने अपने जो है इसमें नाम डाल दें, ताकि जो है क्लास की जो एक्टिविटी है उसमें यानी मदद मिले और स्मूथ चले, कार्रवाई जो है क्लास की कार्रवाई स्मूथ चले, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी क्लास के दरमियान में नहीं हो। एक सादिक साहब है, उनका कैमरा मुसलसिल ऑन रखा। एक मोहम्मद रफीक साहब है, एक इनायतुल्लाह खान है, उनका बैंक कैमरा खुला है। और गुलजार अहमद साहब है, उनका कैमरा खुला। गुलाम अहमद शाह, बंद करें भाई, जरूरत नहीं है हम लोग ना कैमरों की। कैमरे से जो है क्लास का वॉइस मैसेज इफेक्ट होता है, तो पूरी कुव्वत वाईफाई की कैमरों में चली जाती। तो ये जो लोग, इनको बोलने के बावजूद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कैसा करना। तो प्लीज आप अपने टाइम में जो है अपने एक बार दबाएंगे तो बंद होगा, फिर दबाएंगे तो फिर खुल जाएगा। आप लोग बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर फाइनली खोल दे रहे हैं। देखो उस पर लाल लाइन आती है, उस पर बंद हो गया तो लाल लाइन आती है, तो आप उस पर लाइन खोल उस पर जो है कैमरे बंद कर दें। तो एनीवे ये तो इंस्ट्रक्शन है, एक बार बोलने के लिए, ये हर दिन बोलने के लिए नहीं है। तो आप इसको फॉलो करें। मैं कल जब देखूंगा तो सब लोगों के नाम रहेंगे। हाँ, जाके किसी को बताइए, टेलीफोन वाले को बताइए, या किसी घर में किसी को भी बता के अपने नाम सही करिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब जो होमवर्क मैं दिया था, सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप लोग जो है दिन में, क्लास खत्म होने के बाद दिन में हमेशा अपना ग्रुप चेक करते रहे। ग्रुप का नाम है जूम 14 जेंट्स तजवीद क्लास, जिसके अंदर आप लोगों ने रजिस्टर किया है, जिसमें आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये ग्रुप हमारा फाल है, यानी एक्टिव है। आप जाके देखें आज मौलवी साहब ने क्या होमवर्क भेजा है, क्या भेजा है, क्या हदीस भेजी है, क्या हम लोगों को करने का काम है, उसको गौर से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, उसमें जो जो बोला गया है पूरा करें। कल मैंने वो 3 सफ़े भेजे थे और तीनों सफ़ों की वॉइस मैसेज भी भेजी थी, ताकि अगर आप लोग किसी वजह से क्लास में मिस कर दिए हैं तो फिर पूरा आपको एक बार फिर एक्सप्लेन किया गया था और पढ़ के भी दिखाया गया था, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस करके आए। दूसरे दिन जब भी आप आएंगे, हर आदमी होमवर्क पढ़े, उसको समझ जाए और उसकी प्रैक्टिस करके आए, क्लास में पढ़ के सुनाने के लिए तैयार रहे। मैं किसी का नाम पुकारूं तो ने मुल साहब मैं कल नहीं देखा होमवर्क, मैं बहुत बिजी था। तो भाई आपने क्लास में रजिस्टर किया है, आप इसके कायदे क़वानून फॉलो करने के लिए आपने एग्री किया है। तो आप जो है कोर्स करने के लिए जब आप
नया रजिस्टर किया है तो यू शुड बी रेडी फॉर उसके जो भी जरूरियात है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप पूरी करें, है ना। उसका होमवर्क पढ़े और उसकी तैयारी करके आए। मैं जिसका नाम पुकारूं वो पढ़ के सुनाए मेरे। हाँ, ये नहीं बोले मैं नहीं देखा होमवर्क क्या था, मेरे को होम मैं ग्रुप में नहीं, एक साथ बोलते एक महीने के बाद मैं ग्रुप में नहीं। मैं रोज आना पूछ रहा हूँ जितने लोग अब क्लास में है वो पूरे ग्रुप में है क्या, नहीं है। नहीं है तो पहले ग्रुप में आए, वो ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में जो होमवर्क डाल डाल रहे हैं उनको नजर आएगा। फिर मैं तो नजर नहीं दिखेगा उनको ग्रुप में, उन्हें शामिल नहीं है तो कैसा मिलेगा उनको। आप पहले ग्रुप में शामिल हो और रोजाना अपना होमवर्क चेक करें। ये तमाम चीजें आपका, आप जो मकसद के लिए आए हैं, जो उसके लिए आए हैं, उसमें सब ये सब मदद करेगी आपको। मैं जो जो बोल रहा हूँ ये सब उसमें जो है हमको हमारी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए, हमको जल्दी सीखने के लिए, जल्दी कोई भी चीज बताते ही कैच करने के लिए हम उससे 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं, फिर होमवर्क में भी डाल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे साथी जो है वो तैयार हो गए कि मैं रोजाना रिकॉर्डिंग करूंगा और ग्रुप में डालूंगा, ताकि जो है क्लास में आज क्या हुआ एक बार फिर आप उसको, अगर आपको क्लास में एक बार में आपको कोई चीज जहन में नहीं बैठी थी, समझ में नहीं आई थी, या 1 से 2 बार सुने तो अच्छा पक्का होता सबक आपका। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल रहे हैं, ताकि आप दोबारा सुन के जो जो चीजें बताई गई थी, नया सबक जो था वो पूरा आप उसमें अच्छी उसमें महारत हासिल करें। डे 1 से आप एक एक चीज को पकड़ के चले, ताकि बाद में जब बड़ी चीजें हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आना, है ना। हर दिन आपका डेवलपमेंट होना, हर दिन कोई नई चीज आप सीखना। हमारा मकसद है हर दिन आपको एक नई चीज मालूम होना, आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना, आगे बढ़ना बस। आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश जो हो रही है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। अब आप खुद जिम्मेदार है, मैं कैसा आगे बढ़ूं, कैसा आगे जाऊं। एक जस्तजू रहना, एक लगन रहना, लगे हुए रहना, है ना। ताकि पहले हमको देर हुई, कुरान सही पढ़ना बहुत बचपन में करने का काम था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका, अल्लाह माफ करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तवज्जो करें, हम जो है फिक्र करें, अल्लाह ताला ने कोई रास्ता मुहैया कर दिया, कोई मौका मिल गया, कोई पढ़ाने वाला मिल गया, और फिर जाने आने का भी मसला नहीं है, ऑनलाइन घर बैठे काम हो रहा है और आप लोग अच्छी तरीके से जो है कुरान पढ़ना सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम आ गए हैं माशाल्लाह। एक थोड़ा आगे तो आ गए हम लोग, और बिल्कुल अब यहाँ से हम लोगों को सीधी रोड है, बस चलते रहना है, सीधी रोड है। और कोई इसमें आप जो है मैं जैसा जैसा बोला बोल करें, और कोई रुकावट इसमें जो है इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो ये बता रहा था मैं कि हमारा जो हरकत सलासा का सबक है, जिसके तहत हम 3 पेजेस कल नूरानी कायदे से पढ़े थे, और वो पेजेस माशाल्लाह आप लोगों को मैंने भेजा भी था। आप लोग जो है पेज नंबर 13, 14 और 15 थे मेरे ख्याल से। आप लोग ये नूरानी कायदा मैंने सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दी है। आप सॉफ्ट कॉपी में भी आप पढ़ सकते हैं, आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। आपके हाथ में अगर प्रिंट वाली कॉपी है तो आप इसको जब फ्री रहे इसको थोड़ा देख सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पहला वाला पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में जबर की तख्ती। मैंने बोला था हर आदमी अलिफ से लेके या तक 3 बार पढ़े और नीचे की मश्क पढ़े। फिर हर आदमी अलिफ से लेके या तक ये जेर की तख्ती पढ़े, ताकि जेर का डायरेक्शन सही हो। जेर का डायरेक्शन है, हम लोग क्या पढ़ते हैं जब अलहम का सूरा, जब सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं एहदिना सिरातल, एहदिना सिरातल नहीं है वो, अलिफ के नीचे जेर है वो, इहदिना सिरातल है वो। 90% लोग क्या पढ़ते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस नहीं है वो। मैं वही बोला ना, आप 90 डिग्री नहीं पढ़ते, स्लैंट करके 45 डिग्री पढ़ते हैं बहुत सी चीजें। जेर को 45 डिग्री नहीं, 40 पूरे 90 डिग्री से पढ़े। तो कैसा पढ़ेंगे आप उसको, इहदिनस सिरात। तो ये तमाम चीजें कैसा सही होंगी, हम ये तख्तियों पे अच्छी तरीके से यानी सबकत ले लेंगे अच्छी तरीके से, ये इस पे ये तख्तियों को अच्छा पढ़ के सीख जाएंगे। तो ये थी जेर की तख्ती, और ये जेर की तख्ती में नीचे मश थी। मश भी उन्हें अच्छे खासे 2-2 4 लाइन की मश दिया इसको। फिर उसके बाद तीसरी हरकत कौन सी है, पेश। पेश में क्या बोल रहा हूं उन्हें, पेश पेश पढ़ते वक्त में आपके होंठ गोल होने चाहिए, कोई भी हर्फ पे रहो पेश,
तो पूरे कुरान में कहीं भी रहो पेश, आप पेश पढ़ते वक्त में आपके होंठ गोल होने चाहिए, होंठ पहले गोल कर ले, फिर वो लफ्ज अदा करें। तो वो लफ्ज का जो गेटअप है, जो सही पढ़ने का जो लहजा होना चाहिए, जो मखरज होना चाहिए, जो आवाज निकलनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड आवाज है, वो होंठ गोल करे बगैर नहीं निकलती। तो आप लोग हमेशा ख्याल रखिए, पेश वाला हर्फ पढ़ते वक्त में आपके होंठ गोल होने चाहिए। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बड़ा इफेक्ट करती पढ़ने में। आपका जो अगर कोई आदमी जो है, आप देखे होंगे, जिसके मखरज सही है, यानी हर्फ निकलने की जगह सही है, वो आदमी अगर इवन उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू में भी वही मखारिज है ना, मखारिज है, तो आप देखेंगे अगर किसी आदमी के मखारिज अच्छी है और वो पढ़ा लिखा है, काफी वो है, जब वो बात करता है तो उसके बात करने का लहजा, उसका बात करने का सलीका एक अलग ही चीज रहती है। लोग उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं यार के, बाद लोग बोलते हैं यार ये आदमी बात कर रहा है तो ऐसा मालूम होता है इसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। वो फूल तो नहीं झड़ रहे हैं, उसके मखारिज अच्छे हैं, उसका जो है बोलने का हर लफ्ज का अंदाज सही है। तो आपको एक अच्छा दिखता है कि एक आदमी, मालूम होता है कि आदमी पढ़ा लिखा है, ये आदमी लर्नड है, सीखा हुआ है, हर चीज जानने वाला है, बहुत अच्छा इल्म है इसको। क्यों? इसीलिए बहुत सलीके से बात करता हूँ, मखरज सही रहते। कोई भी गाने वाला को पहले मखारिज सिखाता, कोई भी कुछ भी रहने दो ने, कोई भी मजहब वाला रहने दो, उसको मखारिज सिखाते। उर्दू में भी वही मखारिज है जो अरबी में है ना। तो मखारिज से गुफ्तगू में जान पड़ जाती, सुनने वाले को बहुत अच्छा दिखते अल्फाज, इसीलिए गाने कई को अच्छे दिखते, गाने वाले के मखारिज सही रहते। आप लोग, हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं, हमारे मखारिज सही नहीं है, अल्लाह अकबर। हमारे मखारिज, मखारिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, एक बात आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप कहीं भी जाके तजवीद का कोर्स करिए, दुनिया के कोई भी हिस्से में, वो 2 महीने का रहने दो, 4 महीने का कोर्स रहने दो, 1 साल का रहने दो, 5 साल का, पहला लेसन मखारिज है। पहला लेसन जाते ही पहले दिन से मुल्क साहब घसना शुरू कर देते, मखारिज सही कराते पहले, उसके बगैर आगे बढ़ते ही नहीं हो। लेकिन मखारिज का जो सबक है वो इतना ड्राई और टफ है कि लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर प्रैक्टिस करके भाग जाते। मेरे को मालूम है, मैं इसमें 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जो है मैं दुबई में भी 20 साल पढ़ा के आया, 25 साल यहाँ आके मैं 10-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको मेरा तारुफ भी दूंगा बोला था, लेकिन रोजाना एक सबक आ जा रहा तो मैं बताया नहीं। मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, दिलशाद नगर में रहता हूँ। और मैं जो है, मैं एक्चुअली मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। एक अमेरिकन कंपनी में मैं अकाउंट्स मैनेजर था 25-30 साल दुबई में। AIG बहुत मशहूर कंपनी है अमेरिका की। मैंने अमेरिका से इंश्योरेंस अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की है, एडवांस अकाउंटिंग की। तो मेरे को, मैं इंश्योरेंस अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हूँ। और मैं एक अमेरिकन कंपनी में एज ए अकाउंट्स मैनेजर काम कर रहा था। और मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं था, तजवीज से मेरे को खुद नहीं आती थी। फिर मैंने एक उस्ताद के पास सीखा, बहुत बहुत लोगों के पास फिरा, लोग सही बताते नहीं, तो पढ़ाने वाले बात सही नहीं, बात ऐसा नहीं। फाइनली 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 मेरे को, ये कोई, आप माइक खोल के बात कर रहे हैं, मैं माइक बंद करो बोल रहा हूँ ना आप लोग, आप माइक खोल के बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है, माइक बंद करें। इसका आवाज आ रहा है, इतना बोलने के बाद भी आप लोग माइक नहीं बंद करने के लिए तैयार है। जी मैंने बंद कर दिया, चले कोई बात नहीं। तो मैं जो है आपको ये बता रहा था कि जो है, मैं जो है बहुत तलाश करा, आखिर में एक उस्ताद मिले, तो उनसे मैंने पढ़ना सीखा। और फिर जो है, फिर मैंने क्या किया, जब पूरा गौर व फिक्र करा तो मेरे को मालूम हुआ कि अगर इसको एक सही तरीके से, एक स्टाइल से, एक जरा जरा मॉडर्नाइज तरीके से इसको, कोर्स को रिडिजाइन किया जाए, तो लोग इसके करीब आएंगे, वरना लोग इससे भागते हैं। क्योंकि मौलवी साहब पहले दिन जाते ही मखारिज पढ़ाना शुरू करते। मखारिज जो है बहुत जरा बारीक चीज है, थोड़ा मेहनत करने वाली चीज है, ड्राई सब्जेक्ट है। अब हा और हा, हा और हा, ये दो निकलने के अलग अलग जगह है, इसके अंदर इतनी बारीकी है। पहले दिन से ये बताए तो आपको समझ में नहीं आता, और आप क्या करते, थोड़े दिन प्रैक्टिस करते करते मौलवी साहब खूब गुस्से में आते, खूब काफी गर्मा गर्मी होती, ये होता, उसका छोड़ के भागा।
50 से ज्यादा % लोग मखारिज के सबक से भाग जाते, पहले लेसन से करीब नहीं आते, फिर जिंदगी भर तजवीद के। मैं बोलता अरे भाई ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, काफी गौर फिक्र के बाद मखारिज का सबक मैंने थोड़ा आगे की तरफ बताया। पहले दूसरी चीजें बता के जो आसान है, जो अच्छी है, इफेक्टिव है, जो टेक्निकल है, वो आपको बता के तजवीज से बिल्कुल आपको करीब करके आपको तजवीज से थोड़ा दिलचस्पी पैदा हो जाती, थोड़ा थोड़ा मजा आता, थोड़ा अच्छा दिखता, थोड़ा सीख भी जाते। उसके बाद मैं मखरज सिखाता हूँ। तो जब आपको उतना डिफिकल्ट नहीं दिखता और थोड़ा आप यानी आ जाते, अब यानी एक सीखने के मूड में आ जाते, मोड बदल जाता आपका। और फिर मैंने चीजों को, जो मौलवी जो पढ़ाते हमारे हमारे मौलवी बेचारे वो खुद स्कूल नहीं जाते कभी, या गए भी तो ड्रॉप आउट रहते, फिर हिफ्स कर लेते, आलमियत करते, ये करते, पढ़ाना शुरू कर देते। दे आर नॉट ट्रेन टीचर्स, दे डोंट नो हाउ टू टीच, दे डोंट नो। अगर आप बताएं कोई अरबी का उस्ताद व्हाइट बोर्ड लेके पढ़ाने वाला है, कोई बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करते। बोर्ड का इस्तेमाल इज सो इम्पोर्टेंट। उन लोग बोर्ड लेके नहीं पढ़ाते, वो लोग बोर्ड लेके फिरते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, उनको बोर्ड का कंसेप्ट ही नहीं मालूम। और उसके मिसालें देना, उसके क्वेश्चन आंसर सेट करना, उसका एक्सरसाइज सेट करना, लोगों को एक सबक एक ही वक्त में बताना। मेरे सबक क्या करते, एक वक्त में 4 चीजें बता देते, वो एक भी याद नहीं रहती, ना उसकी प्रैक्टिस कराते, क्योंकि दे डोंट नो टीचिंग मेथड। टीचिंग इज ए इंटायरली ए डिफरेंट सब्जेक्ट। उसको कैसा सिखाना है, लोगों की साइकोलॉजी मालूम होना, क्या सीखेंगे तो लोग जल्दी जल्दी ग्रास्प करेंगे, और आप कैसा सक्सेसफुल होंगे, आपका सक्सेस रेट कैसा रहेगा, सीखने वालों में दिलचस्पी कैसा पैदा हो, और यानी तो लोग कुरान के करीब आएंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे। अभी मैंने जब से काम शुरू किया है, ये आप कोई भी मौलवी साहब आप देखिए क्यों करीब आते लोग, क्यों पढ़ते। जब भी मैं रजिस्टर करता हूँ 70-80 आदमी पढ़ते, क्यों? मैंने इजी मेथड लिया है बहुत, मैंने उसको रिडिजाइन किया है बहुत, उसको सिंपल करके मैं बता रहा हूँ और बोर्ड पे बता रहा हूँ। और मैं आपको तजवीज ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको मैथमेटिक्स कराते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, यानी फार्मूले कैसे रहते है ना, एक एक ऐसा 2+2 4 कैसा होता है ना, ऐसा बताए तो क्या होता। हम लोग जो है सब एजुकेटेड लोग हैं, हम मॉडर्न तालीम हासिल किए हुए लोग, अगर उसी लाइन के लिहाज से आपको समझाए तो होता अच्छा समझ में आता। वो मौलवी साहब की लाइन से वो मौलवी साहब बेचारा रट लिया कुरान, और खैर अब उसका भी एक उसके भी मजबूरियां है, मैं उस पर बहस नहीं करता, लेकिन वो लोग जो है वैसा नहीं सिखाते जैसा सिखाना है ना। 3 महीने का काम वो 3 साल में करेंगे, वो भी सही नहीं रहेगा, और बहुत मुश्किल होती है उसमें। इसीलिए जो है कुरान से दूर होने का एक सबब ये भी है हमारा, हम अच्छे टीचर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छे टीचर्स होना, अभी मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, अभी जितने हमारे शागिर्द हैं उसमें अच्छा पढ़ने वालों को चुन के मैं उनको ट्रेन करके नए बैचेस बना के दे रहा हूँ। काम थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और लेडीज में माशाल्लाह ज्यादा कामयाबी मिल रही है। अभी लेडीज के रोजाना हमारे पास 8 बैचेस चल रहे हैं, 8 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे माहिर है, सब खारिया है और क्वालिफाइड टीचर्स है। 2 सऊदी में है, 1 यूएई में है, 2 नॉर्थ में है, 3 कश्मीर में है, 2 बेंगलुरु में है, करीमनगर में है, हैदराबाद में है। तो मुख्तलिफ जगह से टीचरों को हमने ट्रेन करके, लेडी टीचर्स को ट्रेन करके जो है ये काम पे लगाया है, ताकि अगर घरों में लेडीज सही पढ़ लेंगे, लेडीज को तजवीज अच्छी आ जाएंगी, तो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेंगे, कि वो टीचर रख के उनका टाइम खराब करने की उनको जरूरत ही नहीं रहेगी। उनको खुद तजवीज मालूम है, सही कुरान पढ़ने आ गया लेडीज को। माँ को अगर आता है तजवीज से पढ़ना सीख लेती है माँ, तो उसके तमाम बच्चों को वो खुद सिखा सकती है, उसको जरूरत ही नहीं है कोई टीचर। तो ये प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। 8 क्लासेस डेली हमारी चलते हैं, हर क्लास में 100 स्टूडेंट्स, मारा मारी है। अभी जो क्लास 14 जिसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, आज इसका पहला क्लास है, आज इसकी 14 तारीख से मैंने आपके ग्रुप में भेजा था अपने अपने लेडीज को देने के लिए। आज 3 बजे से वो पहली क्लास है। आप देखेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन 800 लेडीज ने रजिस्टर कर दिया है, जबकि क्लास की कैपेसिटी 100 ही है। हम नहीं ले सकते, जूम में 100 से ज्यादा नहीं ले सकते। 100 से ज्यादा लिए भी तो ज्यादा लोगों को लिए तो पढ़ाना भी है ना, पढ़ाना भी है उनको, हर आदमी को पढ़ने का चांस देना पड़ता। 100 से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते एक टीचर।
تو ہم 100 کو لیتے ہیں کہ زوم کی کیپیسٹی بھی 100 ہے، تو باقی کے 700 ریجیکٹ ہو گئے، ہے نا. باقی کے 700 کلاس میں نہیں آ سکے، جو فرسٹ کم فرسٹ بیسس ہے، تو نہیں آ سکے. پھر ہم پھر اناؤنس کرتے ہیں نیا ڈیٹ، تاکہ وہ 700 میں سے لوگوں کو موقع فراہم کرے. تو ہم اور نئے ٹیچروں کو رکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی میں، جینٹس کے ٹیچروں کو بھی رکھ رہے ہیں. اور دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں، جب جیسے اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ لوگ جب ماسٹر ہو جائیں گے 4 مہینے کے بعد آپ کوالیفائڈ ہو جائیں گے، تو 2 کام ہم کرتے ہیں. ایک تو ہم آپ کو جامعہ نظامیہ جو حیدرآباد کی عربک یونیورسٹی ہے، اس سے آپ کا تجوید کا ایگزام آپ کو اپیئر کرنے لگاتے ہیں. اس میں آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، اس کا آن لائن رجسٹریشن ہو گیا ہے آج کل، اس میں بہت سہولت ہے. لیکن ایگزام دینے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، 3 گھنٹے کا ریٹن پیپر ہے. آپ کو ہم پریپیئر کراتے ہیں، ایگزام سے پہلے پریپریشن کلاسز ہوتے ہیں 15 دن کے، پوری تیاری کراتے ہیں، ماڈل کوسچن پیپر کراتے ہیں. 3 گھنٹے کا ریٹن ٹیسٹ ہے، بولتے بہت بڑا پیپر ہوتا ہے. پھر وہ لوگ پڑھا کے دیکھتے ہیں، آپ سے کھرت کراتے ہیں، وائوا ہوتا ہے، پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے. تو ہم پورا یہ پاس بھی کراتے ہیں. اور دوسری بات ہے، جب آپ کا 4 مہینے کا کورس مکمل ہو گیا، وہ ایگزام تو دلاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ہم پھر آپ کی ایک کلاس میں 50 لوگ ہیں، ہم 25-25 کے 2 گروپ بنا دیتے ہیں. 40 ہے تو 20-20 کے 2 گروپ بنا دیتے ہیں. اور جو اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، اس میں سے ان کو گروپ کا لیڈر بنا دیتے ہیں، 1 2 لیڈر 3 لیڈر. اور ان کو نیا زوم کا لنک دے کے بولتے ہیں جس طرح آپ یہ 4 مہینے کلاس میں آتے رہے، اسی طریقے سے آپ روزانہ صبح 6 بجے یہ دوسرے زوم کی لنک پہ آپ جوائن ہو جائیں. یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کی کلاس والے ہیں، انہوں اچھا پڑھتے، تو یہ آپ کو روزانہ ایک صفحہ پڑھ کے ان کو سنانا، اس کے فائدے بولنا. تو یہ مسلسل ہم ان کو کیا کرتے ہیں، آپ 4 مہینے کے بعد آپ کو جانے نہیں دیتے، کیونکہ آپ نے سیکھ لیا. اب آپ کی بغیر پریکٹس کرے کہ آپ پکا نہیں ہوتا آپ کا کام. آپ 4 مہینے پڑھ کے چھوڑ دیں تو پورے جتنے قاعدے میں سکھایا 4 مہینے محنت کر کے پھر آپ بھول جاتے. آپ کو انٹرنشپ ضروری ہے. آپ میڈیکل میں جائیے، آپ 4 سال پڑھیں گے تو 1 سال انٹرنشپ کرنا پڑتا، پریکٹیکل دواخانوں میں جا کے کام کرنا. انجینئروں کو بھی جا کے ایک فیکٹری میں کہیں بھی جا کے انٹرنشپ کرنا پڑتا. تو یہ انٹرنشپ ہے. آپ جا کے اپنے گروپوں میں روزانہ ایک صفحہ سنائیں گے اور قاعدے بولیں گے اور مسلسل اس میں جڑے رہیں گے. قرآن تو پڑھنا ہی ہے نا، روزانہ قرآن پڑھنا ہے آپ کو. قرآن جو ہے خالی سیکھ لے کے چھوڑنے کا نہیں ہے، آپ ہر دن قرآن کی تلاوت کرنا ہے نا. نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت تلاوت ہے، تلاوت کلام پاک ہے. تو آپ اکیلے پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں صحیح پڑھوں. شیطان آپ کو بولتا ہے آپ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اور بہت غلطیاں رہتے ہو. اکیلے پڑھنے میں آپ غلطی سے پڑھے تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا رہتا نہ بولنے والا رہتا. اگر آپ گروپ میں جا کے روزانہ ایک صفحہ سنیں، آپ کے جتنے غلطیاں نکل رہے آپ کے ساتھیاں بتائیں گے، آپ کا گروپ لیڈر بتائے گا، تو آپ کے غلطیاں درست ہوئیں گے. آپ دوسرے دن وہ غلطی نہیں کریں گے، آپ کی قرآن صحیح ہوتے رہے گی. ہر دن پڑھنا ہے قرآن. تو اس طریقے سے ہمارے کوئی 40-50 بیچ جینٹس میں اور 40-50 بیچ لیڈیز میں چل رہے ہیں. تو وہ جو پریکٹس بیچ ہے وہ بھی چل رہے ہیں، اور جو نئے بیچز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اس طریقے سے اکیڈمی کا جو ہے پورا کام دن بھر میں مصروف رہتا ہوں، اس میں دن بھر یہ کام چلتے رہتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو آگے کا لاہ عمل بتایا کہ آگے آپ کا کیسا، آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ کو کیا کیا کرنا ہے. پہلے تو آپ کو پورا ریگولر اٹینڈ کرنا ہے، اچھی طریقے سے سیکھنا ہے، ایگزام پاس کرنا ہے. اس کے بعد پریکٹس کلاس میں جا کے مسلسل پڑھنا ہے اور جڑے رہنا ہے قرآن سے. اور اب ہم لوگ 4 مہینے پڑھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے دوستی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے خلوص بڑھے گا، ایک دوسرے سے پہچانت ہو جائے گی آپ لوگوں کی. پھر آپ لوگوں کا گروپ آگے جا کے روزانہ پڑھیں گا تو روزانہ 1 گھنٹہ تو اور بھی آپ لوگوں کی دوستی گہری ہوگی. تو ایسا کیا ہے، یہ اس سے معاشرہ بنے گا، اس سے لوگ قریب آئیں گے، اس سے جو ہے دوریاں دور ہوں گی، اس سے جو آج کل اختلافات ہے ایک دوسرے سے وہ ہے یہ دور ہوئیں گے. ہم لوگ ایک مقصد کے تحت قرآن کے توسط سے جڑے رہیں گے. سب کوئی دنیاوی مقصد سے تحت نہیں جڑے رہیں گے، کوئی چندہ جمع کرنا نہیں ہے ہمارا، کوئی ووٹ حاصل کرنا نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ صرف قرآن کے لیے ہم ایک دوسرے کے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے توسط سے جو ہے ایک دوسرے سے بھائی ہم دین کی نسبت سے بھائی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور الحمدللہ آپ اس سے جڑ گئے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو
یہ پورا میں آپ کو بتا دیا کہ آگے تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو اب میں آتا ہوں اپنے اس کی طرف، اپنے سبق کی طرف. تو یہ تیسری تختی تھی ہماری پیش کی، اور یہ پیش کی تختی میں بتا رہا تھا پیش کی پڑھتے وقت آپ کیا بولنا چاہیے. آپ یہ پورے میں اس میں بولا تھا آپ لوگ سب کر کے آئے ہوں گے. کل ایک دن چھٹی بھی تھی آپ کو، تو دو تین بار الف سے لے کے یہاں تک پریکٹس کرے ہوں گے آپ لوگ. نہیں کرے ہوں تو آج کر لیں پلیز. آپ کیا کریں، روز کا کام روز کریں، کیونکہ ایک کورس شروع کریں تو اس کی پوری ریکوائرمنٹ کرنا، جیسا بولے ویسا کریں تو آپ بالکل ساتھ ساتھ چلتے رہتے، نہیں تو آپ پیچھے ہوتے جاتے، اور ہوتے ہوتے آپ کو بورنگ ہوتی، آپ چھوڑ دیتے. اب آپ دیکھیں میری ہر کلاس میں پہلے 100 لوگوں سے شروع ہوتا، 15 دن کے بعد 80 آدمی رہ جاتے، ایک مہینے کے بعد 60 رہ جاتے، 2 مہینے کے بعد 50 رہ جاتے، 3 مہینے کے بعد 40 رہ جاتے. کیا کدھر چلے جاتے لوگ؟ کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو؟ تھوڑے دن آ کے کیوں چھوڑ دیتے؟ پھر دوبارہ کب پڑھیں گے لوگ؟ کیوں شروع کرے تھے؟ کیوں جوائن کر رہے تھے؟ ہاں اس میں سے 1% 2% کوئی مجبوری کے تحت کچھ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن میجورٹی یہ ہمارا حال ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ میں کم سے کم ہماری جو جتنے لوگ جوائن کرے ہیں، ہمارے 60 ہے، 70 کے قریب ہے، ہم جو ہے آخری تک ہم یہ اٹینڈنس کو، یہ اسٹرینتھ کو آخری تک ہم مینٹین کریں. ہر آدمی ذمہ دار ہے اس میں روز آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں میں. آپ قرآن سیکھنا چھوڑ دے رہے ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ان میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے. ہم کہیں کو آ رہے ہیں یہاں پہ؟ قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی مقصد نہیں ہمارا، کوئی ناشتہ پارٹی نہیں ہو رہی ہے، کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہے، کوئی کافی پارٹی نہیں ہے، کوئی بریک فاسٹ پارٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کے لیے جمع ہو رہے ہیں ہم لوگ، قرآن سیکھنے کے لیے. اور ہر دن ہم ایک لیسن آگے بڑھیں گے. ہم ناپیں گے، ہر ہفتہ ناپیں گے یہ ہفتے میں ہمارا کیا ڈیولپمنٹ ہوا، کتنا آگے بڑھے ہم لوگ، ہے نا، کتنا سیکھے. انشاءاللہ اس کا بھی نظم ہے. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ رکھیں گے، چھوٹے چھوٹے یعنی ہر ایک کو چیک کرنے کا نظم ہے. انشاءاللہ وہ اس کو بھی جو ہے روبے عمل لائیں گے. تو یہ 3 تختیاں آپ لوگ پڑھ کے آ گئے. میں کیا کروں گا، ہمارے پاس جو ہے 50+ لوگ آئے. سب سے تو میں نہیں پڑھا سکتا. جن کو اچھا پڑھنے آتا، جن کو کانفیڈنس ہے، اور جو کمزور لوگ، پہلے یہ بتائیے میرے کو آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ہوم ورک کر کے نہیں آئے؟ مائک کھول کے بولیے میرے کو ٹائم میں. جو کر کے نہیں آئے ہمت کر کے بولیے میں نہیں کرا کر، میں نہیں کر سکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ میں 2 دن سے میں باہر تھا، اس لیے میں نہیں کر سکا شیخ، معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آج کر لوں گا. ہاں جی شکریہ، جزاک اللہ. اور کون ہے؟ بارک اللہ فیک. اور کون ہے؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی میں آج ہی جوائن ہوا، مجھے پتا نہیں، میں اب سنا اچھا اوکے آپ کا ریزن تو بہت کلیئر ہے. اوکے 3-4 دن کے کلاسز چلے گئے آپ کے، لیکن اگر آپ گروپ میں جوائن ہو گئے ہیں تو گروپ میں پہلے دن سے کی پوری ریکارڈنگ تھی وہ تو سن سکتے تھے نا آپ؟ جی مجھے کل شام پر تو پتا چلا، اس لیے میں چیک کیا تو ریکارڈنگ میں تھا وہ. بعد میں انشاءاللہ آج کلاس جوائن کیا حضرت. میں کچھ بول رہا ہوں، آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی میں یہ بول رہا ہوں ہر دن کی کلاس کی ریکارڈنگ Day 1 Day 2 Day 3 3 کلاساں ہوئے ہمارے، 3 دن کی ریکارڈنگ ہے. اس میں آپ وہ سن لیے تو کم سے کم آپ کلاس اٹینڈ کرے ایسا ہو جائے گا. تو آپ وہ تو کر سکتے نا. انشاءاللہ کرتا ہوں حضرت. وہ کریے. اوکے. اور کون ہے بھائی؟ اور کون ہے؟ باقی والے سب پڑھے، اس کا مطلب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آج نہیں کر سکیں، مطلب آج نہیں سنا سکیں، کل پکا سنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ڈیولپمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھنا تو صحیح ہے. نیکسٹ کون ہے؟ اب جو لوگ نہیں بول رہے ہیں آگے آ کے، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھا، جب میں ایک ایک کو پڑھاؤں گا تو جب پتہ چل جائے گا کہ آپ پڑھ کے آئے کیا نہیں پڑھ کے آئے، کیا آپ غلط پڑھیں گے پریکٹس نہیں کر رہے تو اس سے بہتر ہے آپ بتا دیں میں نہیں کر سکا.
हिम्मत करके। चले ठीक है। तो मैं बोलना ये चाह रहा था, हम कुछ लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आज, सिलेक्टेड, रैंडम, क्योंकि मालूम नहीं। तो मैं जिसका नाम पुकारा वो साहब क्या करे, माइक खोले। हमारे पास पढ़ने का तरीका हमारी क्लास में क्या है मालूम है, मैं किसी का नाम पुकारूंगा, आप माइक खोलेंगे, माइक खोल के सबसे पहले आप सलाम करेंगे पूरे क्लास के साथियों को। ये आदमी, हर आदमी नोट कर ले इस बात को। मैंने सलाम के ताल्लुक से एक हदीस भी डाल दी आपके कल रात में, तो वो भी पढ़ ले हदीस जाके, और जो है सलाम करें। सलाम करने के बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, इससे पहले के पढ़ना शुरू करें। याद रखें ये दो बातें हर आदमी याद रखे, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें, है ना, पढ़ के बताएं। फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, हम कम से कम 5, 6, 7, 10 लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद बाकी वाले जो सुनेंगे, तो सुनने में ही उनको जो है, सुनना भी जो है सीखने का एक वो है। और एक खास बात ये है कि जो क्लास में जो है, क्यों लोग बच्चों को स्कूल को भेजते, अगर बड़े बड़े पढ़े जो मल्टी बिलियनर लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, वो लोग तो टीचरों को घर पे बुला के भी पढ़ा सकते बच्चों, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजते लोग क्यों? स्कूल में क्या रहता, 40-50 बच्चे रहते एक क्लास में, 30 बच्चे तो भी रहते। तो अब बच्चा क्या करता, 30 बच्चों के साथ हर चीज सुनता। बोल साहब जब पढ़ाते तो हर बच्चा एक डिफरेंट सवाल करता, हर बच्चा एक डिफरेंट चीज पूछता, एक डिफरेंट तरीके से पढ़ के बताता। तो क्या रहता, आप 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 क्या सीखना मल्टीप्लाई हो जाता। 30 इंटू यानी 30 गुना, अगर 30 बच्चे हैं तो 30 गुना तेजी से आप सीखते हैं, क्योंकि हर बच्चे का स्टाइल एक अलग रहता, हर बच्चे की ख्याल अलग रहता, उसके सवालात अलग रहते, उसकी सोच अलग रहती। स्कूल में जो सीखता है वो कई गुना ज्यादा रहता जो अकेला सीखेगा। नहीं अकेला रहता ना, उसको उन्हें जो समझ में आया पूछता, नहीं पूछता। लेकिन स्कूल में 40-50 बच्चे रहते, तो ये स्कूल के अंदर जो सीखता बहुत तेजी से सीखता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता। इतने बच्चों के ख्यालात, इतने बच्चों की सोच, इतने बच्चों की जिद्दत एक जगह जमा हो जाती, तो बच्चा दिन भर लर्निंग में रहता, बहुत तेजी से सीखता। इसीलिए स्कूल को भेजते, स्कूल में मल्टीप्लाई होता है आपका सीखना। तो ये ग्रुप में जो है, आप 50 आदमी पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सीख रहे हैं। 50 सुनना भी सीखना है, आपका गौर से सुनना। और मैं क्या करूंगा, कोई पढ़ने वाला है, मैं उसकी गलती दुरुस्त करूंगा। आप सुन लिए वो गलती, अरे इन्होंने गलती करे तो ये सही, मौल साहब सही बता दिए। आपका नंबर आया था कि आपके बहुत से गलतियां वैसे ही सही हो जाते। आपका नंबर आने तक, आप समझ रहे ना मेरी बात? तो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गलतियां करते, तो आपको हर टाइप की गलती का जवाब मिलते रहता, आप सीखते रहते। तो आप ये नहीं समझना मैं आज नहीं पढ़ा तो मैं नहीं सीखा, या मैं कुछ भी नहीं करा। आपका क्लास अटेंड करना, आपका क्लास को पूरा फॉलो करना, एक एक आदमी का सुनना, लोग क्या पढ़े, कैसा पढ़े, दिस इटसेल्फ इज यही क्लास है, यही लर्निंग है। तो बिस्मिल्लाह हम क्या करेंगे, आज अब जो है थोड़े से लोगों को पढ़ाऊंगा मैं आज, और हम पढ़ना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। मैं आदिल अहमद, आदिल अहमद साहब, सबसे पहला नाम ऊपर डबल ए से है। जो मैं जिसका नाम पुकारूंगा उन्हें माइक खोल के बात करना, अनजान नहीं मारना, रिप्लाई करना। नहीं रिप्लाई करना चाह रहे आप है ना क्लास में, आपका नाम अपीयर हो रहा, आप माइक ऑन करके बात करिए ना। अब्दुल अहद तांत्रे, अब्दुल अहद तांत्रे, आप माइक खोल के बात करेंगे? हाँ जी जी। क्या बोला मैं, कैसा क्या क्या कैसा क्लास में ज्वाइन करना, कैसा क्या बताया था? माइक खोलते आप सलाम करना पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पढ़ने के लिए तैयार है? जी जी। आपका कैमरा क्यों खुल रहा है?
इतना बोलने के बावजूद आपका कैमरा खुल रहा है, आपको कैमरा बंद करने नहीं आता है तो आप उसको खाली कैमरे को टच करें बंद हो जाता। कैमरा नहीं समझ में आ रहा, आप कल कल सीख लेके आइए कैमरा कैसा बंद करना और कैमरा बंद रखिए। जी जी जो काम बोला जा रहा है उसको कल 24 घंटे के अंदर उसको करने का मालूम करके बंद कर दीजिए। आप कल कल प्रैक्टिस कर लिए, पढ़े थे, होमवर्क करे थे? जी जी करते हैं। आप ये जेर की तख्ती पढ़िए। ये जो लिखी है सर? जी हाँ, जो लिखी है इसमें, ऊपर का नहीं बोल रहा हूं मैं, जो नीचे मस्ट एक्सरसाइज लिखी हुई है वो पढ़िए। इबिल रदिफा औज़ बिल्लाह, मैं क्या बोला? मैं पहले आपको समझा दिया ना, मैं क्या बोला? औज़ बिल्लाह मिनश ये पूरे सूरों में से लिए हुए अल्फाज है, ये कुरान में से लिए हुए अल्फाज है, ये कोई अखबार में से इधर से उधर से लिए नहीं। आप औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करिए। जी जी जी, मैं वजू करने गया था सर, मुझे वजू की जरूरत पड़ी इसलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इबिल रदिफा हमिदा शहीदा बकिला सकिरा रहीमा लाइबा शरीबा आमिला बारिका खतिफा जाजिआ साकिमा गशिया नसिया। माशाल्लाह। आबिद बादशाह शेख, आबिद बादशाह शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वाले, आपने घर में कल प्रैक्टिस की थी? वबरकातुहू। सर माशाल्लाह। ये पेश की तख्ती पढ़ी है नीचे एक्सरसाइज। मैं माइक ऑफ करूं सर? क्या बोले? जी बोलिए। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुसुलु सुदुसु उखिदा कुतिला नुकिसा करुमा उलीमा उदिया सुहुफु उसिया उदीरा नुसीरा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। शुक्रिया सर। अजमतुल्लाह कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जेर वाली तख्ती पढ़िए जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबिली रदिफा हमीदा शाहिदा बखीला सखीरा रहीमा लाइबा शरीबा अमिला बरिखा खतीफा जज़िआ सकीमा गैशिया नसिया। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत खूब। फैयाज बादशाह। फैयाज बादशाह, जिसका नाम पुकारे उन्हें माइक खोल के पढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करे। फैयाज बादशाह, फैयाज बाबा। बाबा बाबा मैं बस बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैयाज साहब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा ज़बर रा रु सीन पेश सु लाम पेश लु रु सु लु सीन पेश सु। हिज्जे ने पूरा खाली पढ़िए, खाली रवा पढ़िए, हिज्जे नहीं करिए। अच्छा, सुदुस फुकिदा कुतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु वुसिआ कुदिरा नुसिरा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े फैयाज साहब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। गुलजार अहमद, जनाब गुलजार अहमद साहब। गुलजार अहमद, आप मौजूद है यहाँ पे, आपका नाम अपीयर हो रहा है, आप क्लास में है, आप माइक नहीं खोल रहे हैं। इनायतुल्लाह खान,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए इनायतुल्लाह साहब ये जबर वाली तख्ती। मैं गुलजार अहमद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये पढ़िए जरा गुलजार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दरसा वदा अबदा कसबा दखला बलगा वजदा सजदा। माशाल्लाह, बहुत खूब। इनायतुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये ज़ेर वाली तख्ती पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबिली रदीफा हमीदा शाहिदा बखीला सखीरा रहीमा लाइबा शरीबा आमिला बरीका खतीफा जजिया सखीमा गाशिया नसिया। माशाल्लाह। रफीक शेख, जनाब रफीक शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाली तख्ती। Ukida, Utila, Nukisa, Karuma, Ulima, Utia, Suhufu, Usia, Udira, Nusira। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। माइक बंद कर लें। पढ़ने के बाद अपना अपना माइक बंद करें, ये आवाजें आ रही हैं। जफर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये जबर वाली तख्ती पढ़े जरा। दरसा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरसा वदाआ अबदा कसबा दखला बलगा वजदा सजदा। माशाल्लाह, वेरी गुड। जैनुल आबदीन साहब। जैनुल आबदीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलवी साहब। ये तख्ती मैंने डाली है पढ़ने के लिए बोर्ड पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबिली रदीफा हमीदा शाहिदा बखीला सखीरा रहीमा लाइबा शरीबा अमिला बरीका खतीफा जजिया सकीमा गाशिया नसिया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मोहम्मद अशरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुसुलु सुदुसु फुकिदा कुतिला नुकिसा करुमा उलिमा हुदिया सुहुफु उसिआ कुदिरा नुसिरा। माशाल्लाह। फहद बिन अली अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये तख्ती पढ़ी जनाब देर वाली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इबिली रदीफा हमीदा शाहिदा बखीला सकीरा रहीमा लाइबा शरीबा अमिला बरीका खतीफा जजिया सकीमा गशिया नसिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। हम क्या करेंगे, अभी मेरे को एक अंदाजा हो गया कि हमारी क्लास में आप लोगों का क्या स्टेटस है, आप लोग क्या लेवल के हैं, आपको कैसा उठाना, आपको कहाँ से शुरू करना और क्या चीज़ें बताना, कैसा बताना, एक ज़रा रफ आइडिया मिल गया। माशाल्लाह, सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं और अच्छी आप लोगों की नाज़िरा अच्छा है,
صرف آپ لوگوں کو تجوید کے قاعدے اگر آپ اس کے اندر انپٹ کر دیے، تجوید کے قاعدے داخل کر دیے تو بہت اچھا قرآن، صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ. الحمدللہ بڑی اچھی بات تھی. اس سے پہلے کہ میں جو ہے ٹائم کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ایک دوسرا ہمارا جو ہے لیسن بتانا شروع کروں گا. وہ لیسن کیا ہے؟ لیسن تو وہ دوسرا ہے، لیکن اس کا لیسن کا نام ہے مد اصلی. لیسن کا نام کیا ہے؟ مد اصلی. لیسن نمبر 2 ہے. لیکن یہ بتانا شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں. ہم سیکنڈ لیسن شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بتایا تھا کہ ہم جو ہے پہلے پورے آراب پڑھیں گے، پہلے پورے آراب پڑھیں گے. جیسا اب یہ یہاں پہ کیا ہے، یہ زبر زیر پیش، یہ ہم کر لیے، پڑھ لیے. الحمدللہ یہ ہو گیا. اب یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی تقریباً ایسا ہی ہے. میں اس کو بعد میں پڑھاؤں گا، اس کو چھوڑ دے رہا ہوں. تیسرا سبق کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جزم. پہلے جو اشارے لگتے ہیں، جو سائن لگتے ہیں اوپر قرآن میں حرفوں کے اوپر، پہلے ہم وہ پڑھ لیں گے تو پڑھنا ہمارا آسان ہو جائے گا اور سمجھ میں آئیں گے چیزیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا تیسرا لیسن میں جو آپ کو بتایا تھا کیا ہے، وہ جزم یا یہ والا. پھر ہم بعد میں یہ چوتھا ہے تشدید، پھر ہم تنوین اور وغیرہ وغیرہ پڑھیں گے. لیکن یہ تیسرا کیا ہے؟ جزم. یہ بھی جو ہے یہ ایک اشارہ ہے، ایک سائن ہے جو اس پہ لگتی ہے. کس پہ؟ حرفوں کے اوپر لگتی ہے. تو ہم کو جزم کس کو بولتے ہیں اور جزم کا کیا، جزم کیسا پڑھا جاتا ہے، جزم کیسا؟ کسی کا آواز آ رہا ہے؟ مائک بند کریے. آپ مائک نہیں کھولیے نا آپ لوگ. یہ اس میں ٹائم جاتا نا اپنا. آپ پڑھنے کے بعد مائک بند کر لو. بولا عبدالاحد تانترے صاحب مائک بند نہیں کر رہے، اور بھی لوگ کھول رہے ہیں. ہاں، کیمرے بھی نہیں بند کر رہے. محمد اشرف صاحب بھی مائک نہیں بند کر رہے، بند کرنے کے بعد بھی کھول لے رہے. ایسا نہیں کرے نا تو آوازیں آ کے کیا ہوگا، ڈسٹرب ہوتی کلاس. کیا پڑھا رہا تھا میں؟ کہاں تھا؟ سمجھا رہا تھا. ہاں، جزم. جی، یہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا کیا ہے؟ ایک ہم پڑھ رہے ہیں جزم. جزم کا جو ہے جو جزم یہ ایسا رہتا، یہ ایسا رہتا ہے نا. اس کا نشان کیسا ہے؟ ایسا ہے. اس کو بولتے جزم. اس کو عربی میں بولتے سکون. عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ سکون. عربی میں اس کا نام، مائک بند کریے. ہر آدمی چیک کرے کہ میرا مائک کھلا ہے کیا. سکون عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو سکون. ہم تجوید میں اس کو سکون سے ہی بات کریں گے. ہاں، سکون ہی بولیں گے. آپ لوگ سب سمجھ جانا، سکون کا مطلب ہے جزم. اور اس کا نشان کیسا ہے آپ دیکھ لیے. اس کا نشان ایسا ہے نا. اب یہ ہمارے پاس اب یہ با پہ جزم ہے. یعنی کیا ہے؟ با پہ سکون ہے. یہ جیم پہ سکون ہے، یہ نون پہ سکون ہے، جزم ہے یعنی، ہے نا. یہ میم پہ کیا ہے؟ سکون ہے. تو جس حرف پہ سکون ہوتا اس کو بولتے ساکن. جس حرف پہ سکون ہوتا اس کو کیا بولتے؟ ساکن. یہ با ساکن ہے. ساکن ہے کا مطلب اس پہ سکون ہے. یہ جیم ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ میم ساکن ہے. کوئی بھی حرف پہ جزم رہیں گا ہم بولیں گے یہ حرف ساکن ہے، یہ حرف ساکن ہے. آج کی تاریخ سے ہم اسی لینگویج میں بات کریں گے. تجوید کی کتابوں میں، تجوید کی اصطلاح میں یہی مروج ہے، یعنی یہی چلتا. تو جو چلتا اس کو آپ کو پکڑ لینا. ہم اب یہ سیکھ لینا. جزم کا مطلب ہے سکون. جس حرف پہ سکون رہتا ہے اس کو بولتے ہیں ساکن. اچھا، اب اور ایک سٹیپ آگے چلتا ہوں میں. ساکن کیوں بولتے؟ ساکن اس لیے بولتے ہیں جیسے یہ ہے تا. یہ ہے تا. اب یہ تا پہ سکون ہے. تا پہ سکون ہے. سکون کیسا پڑھے جاتا؟
सुकून वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाता, जज़म वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाता। जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है अलिफ है और उस पर जबर है, जज़म को हरकत चाहिए। जज़म क्या करता, भागता पीछे की तरफ जाके क्या करता, पीछे वाले के हरकत को पकड़ लेता हूँ। जज़म एक मैग्नेट है, उसको हरकत चाहिए, किसकी, अपने से पहले वाले की हरकत चाहिए, आगे वाले की नहीं। अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत चाहिए, उन्हें जाके इससे पकड़ लेके अब पढ़ जाता हूँ। अत अत अत। अगर यहाँ जबर नहीं है, जेर है, यहाँ पे सॉरी मैं हट गया हूँ, यहाँ पे जेर है, जबर नहीं है, सॉरी। अगर तो उन्हें जाके जेर को पकड़ता, इत इत। अगर ये भी नहीं है, अगर यहाँ पे पेश है, इन्हें जाके पेश को पकड़ता, उठ उठ। उसको पहले वाले हर्फ की हरकत चाहिए। जज़म वाला हर्फ कैसा पढ़ा जाएगा, साकिन हर्फ कैसा पढ़ा जाएगा, अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से। और आवाज जो है यहाँ पढ़ने के बाद आवाज यहाँ पे डेड स्टॉप हो जाती, खत्म, उठ उठ, खत्म। पकड़ लेना आवाज को एकदम। इसीलिए उसका नाम, आवाज क्या करती, सुकूनत अख्तियार कर लेती, ठहर जाती। सुकून, एकदम सुकून अख्तियार करना मतलब है। आप देखें ना, अगर कोई आदमी जो है, कोई आपका दोस्त मस्जिद में बैठा हुआ है, आप गए मस्जिद में, उन्हें अकेला बैठा था, हाँ मुझ बैठा बेचारा, कोई फिक्र में, कोई सोच में लगा हुआ है। आप जाके बोलते उस्ताद बड़े सुकून से बैठे, क्या बात है। सुकून से बैठने का मतलब है आप बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, कुछ ख्यालात में है, उसको बोलते सुकून। सुकून का मतलब ठहरी हुई चीज। तो सुकून, आप सुकून वाला हर पढ़े तो आवाज ठहर जाती, सुकूनत अख्तियार कर लेती। अत, जिस पे भी रहेगा उन्हें, जिस पे भी रहेगा, जाल पे सुकून है, ये जाल साकिन है। अब ये इसके ऊपर जबर है, अज अज, खत्म, वहीं ठहर जाती आवाज, वहीं ठहर जाती आवाज, खत्म। अगर जेर है इज, पेश है उज, उसको हरकत चाहिए, अपने से पहले वाले की हरकत चाहिए, उज इज। समझ गए ना। जज़म किसको बोलते हैं, सुकून किसको बोलते हैं, साकिन किसको बोलते हैं। साकिन कैसा पढ़ा जाता, या रुक जाता उन्हें, इन्हें आगे वाले हर्फ से नहीं मिले, अगर आगे या कोई भी हर्फ है दूसरा, इन्हें नहीं मिलाता, इसको खत्म, यहाँ पे कट जाता है, यहाँ कट जाती है आवाज। फिर आप यहाँ से फिर दोबारा शुरू करना, अब इससे इसको इन्हें नहीं मिला सकते आप, इन्हें कट गया, यहाँ पे सुकून हो गया, यहाँ पे रुक गया, इसीलिए उसका नाम सुकून है, इसीलिए उसका नाम सुकून है। और एक बात बताता हूं मैं, आप गौर से सुनिए, ये आप जो है नॉर्मल उसमें नहीं सीखते आप, इससे बता रहा हूं। अब जैसे ये बापे जो है जज़म है, ये बापे जज़म है, और यहाँ पर जो है एक या है, एक वाव है, एक अलिफ है, एक अलिफ है। इन्हें ये जज़म क्या करा, जज़म तो अकेला खुद तो नहीं पढ़ सकते, उसको अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत चाहिए, अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत चाहिए। उन्हें क्या करा, ये जज़म यहाँ गया, मैग्नेट है ना, बोला ना मैं आपको, उन्हें मैग्नेट है। इन्हें जाके देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ खाली है, यहाँ पे तो ना जबर है ना जेर पेश है। इन्हें यहाँ से फिर वाव पे गया, वाव भी खाली है, वाव पे भी ना जबर है ना जेर पेश है। उन्हें अलिफ पे गया, अलिफ भी खाली है, ये अलिफ पे गया, ये भी खाली है। उन्हें पांचवें हर्फ पे गया, उन्हें कहाँ गया, पांचवें हर्फ पे गया, पांचवें हर्फ के रा पे जबर था, अब इन्हें सीधा जाके रा को पकड़ा, ये सोट को गिरा देता हूं, ये सोट साइलेंट है। ये क्यों, मैं आपको क्या बोला, कोई भी हर्फ पे अगर कोई हरकत नहीं है, उन्हें मुर्दा है, डेड बॉडी है, वो नहीं पढ़ी जाती। हरकत लगाए तो ये हरकत पैदा होती, इसमें हरकत ही नहीं है, छोड़ देता उन्हें, हरकत नहीं है तो बाहर निकाल देता, उसको ढकल देता बाहर, नहीं पढ़े जाते, वो साइलेंट है, वो डेड है वो। अब क्या करता है, ये जज़म जाके पांचवें हर्फ को पकड़ता, रब रब, ये सब नहीं पढ़े जाने वाले हैं। कुरान में 4-4, 5-5 हर्फ आते हैं जो नहीं पढ़े जाते बीच में। हम पढ़ने की कोशिश करें तो वहां गलती होती,
ہمارے غلطیاں پورے ایسی جگہوں پہ ہوتے. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو آپ ایسے غلطیاں نہیں کریں گے. جزم والے حرف کو ہمیشہ حرکت چاہیے. وہ ایک لائن پہلے رہے تو نہ ایک لائن پہلے جائیں گے. جہاں حرکت ہو رہے وہاں سے ہی پڑھیں گے, ملا کے پڑھیں گے اور آواز یہاں کے رک جائیں گے. رب, ختم, ہے نا. اور جو جن حرفوں پہ کوئی بھی زبر زیر پیش نہیں ہے وہ سائلنٹ ورڈ ہے, وہ نہیں پڑھے جائیں گے, انہیں باہر کر دیتا, اس کو انہیں جا کے زبر والے کو پکڑتا. آپ سمجھ گئے نا سکون کیسا کام کرتا, جزم کیسا کام کرتا. ہاں, اور جزم پڑے بعد آواز رک جاتی. یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم رہنا. اب کیا ہے, اب جس حرف پہ سکون ہے یہ یا کیا ہے, ساکن ہے. یہ واو کیا ہے, ساکن ہے. کیوں, سکون لگا ہوا ہے. اب ہم اسی لینگویج میں بات کریں گے. کورس ہونے تک یہ ساکن ہے, یہ نون ساکن ہے, یہ میم ساکن ہے, یہ با ساکن. کیونکہ ساکن حرف کے بہت سے ہمارے کو قاعدے پڑھنا ہے آگے. آپ کو معلوم رہنا میں کیا بات کر رہا ہوں, ہے نا. یہ جیم ساکن ہے, یہ را ساکن ہے, یہ لام ساکن ہے, یہ یا ساکن ہے نا. آپ کو کاف ساکن ہے, سین. آپ کو معلوم ہے نا ساکن مطلب سکون, سکون مطلب جزم, سکون مطلب جزم. یہاں تک تو آپ آ گئے. آپ کو اب کیا معلوم ہو گیا, آج کیا پڑھے ہم؟ آج ہم پڑھے جزم. جزم کو عربی میں کیا بولتے, سکون. یہ جزم کا نشان ہے. سکون, جس حرف پہ سکون ہوتا اس کو بولتے ہیں ساکن. ساکن حرف کیسا پڑھا جاتا ہے؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. زبر ہے تو زبر سے, زیر ہے تو زیر سے, پیش ہے تو پیش. اور جزم والا حرف پڑھنے کے بعد آواز رک جاتی. ساکن حرف پڑھنے کے بعد آواز ساکن ہو جاتی, ٹھہر جاتی, رک جاتی, سکونت اختیار کر لیتی, کیونکہ اس کا نام ہی سکون ہے. ہلنا جلتا نہیں ہونے, کھڑے رہ جاتا. جیسے ہی پڑھے ات, آواز ختم, وہیں کا وہیں آواز دب جاتی ایک دم. ات, 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 ختم, آواز رک گئی, ہے نا. تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے پڑھا جاتا ہے اور آواز رک جاتی ہے. اگر پہلے, ہے نا, یہ بھی وہی بتا رہا تھا میں, آواز کٹ جاتی ہے. اگر پہلے والا حرف خالی ہے تو جزم کیا کرتا, اور آگے جاتا. وہ بھی خالی ہے تو اور آگے جاتا. انہیں جب تک حرکت نہیں ملی ڈھونڈتے رہتا, انہیں پیچھے جا کے. میگنیٹ ہے وہ, جہاں اس کو حرکت ملی وہاں سے پڑھنا. آپ بیچ میں کے پورے نکال کے باہر کر دینا, آؤٹ کر دینا. لکھے ہوئے وہ معنوں کے اندر اس کا دخل ہے, اس کا مطلب میں دخل ہے, اسی لیے لکھے. پڑھنے میں نہیں ہے اس کا دخل. آپ بولیں گے مول صاحب نہیں پڑھ رہے ہیں تو کئی کو لکھے ہو لوگا. لکھے بھائی, مقصد ہے اس لکھنے کا بھی, معنوں میں ان کا دخل ہے, اسی لیے لکھے. آپ پڑھنا سیکھیے نا, صحیح پڑھنا سیکھیے آپ. وہ کئی کو لکھے ہو لوگا, یہ لینگویج ہے, وہ لینگویج اپنے حساب سے چلتی ہے. لینگویج کی اپنی گرامر ہے, لینگویج کا اپنا ایک اسٹائل ہے, اس کا ایک سیٹ اپ ہے. تو جزم کو ہمیشہ حرکت چاہیے. وہ حرکت جہاں بھی ملے اس کو انہیں ملا کے پڑھا جاتا ہے. رب, یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو گئے تو قرآن پڑھتے خود میں غلطیاں نہیں ہوتے. جو چھوٹے چھوٹے غلطیاں ہوتے ہیں نا ہمارے, اس کے بعد اور بھی میں جب تجدید بتاؤں گا تو اور بھی بہت چیزیں آپ کو معلوم ہیں. تجدید اور بھی ذرا تھوڑا اس سے بھی ایک اونچی چیز ہے وہ. ہاں, ہم پڑھیں گے ایک کے بعد ایک, پورے سائن پڑھیں گے, ہے نا. جتنے بھی اشارے لگ رہے ہیں ہم پورے پڑھیں گے. پہلے وہ پڑھ لیے تو بعد میں پھر غلطیاں نہیں ہوتے. پہلے ہم اشارے پڑھ لیں گے. تو اب یہ سب بتانے کے بعد اب میں آتا ہوں, اب آپ کو سمجھ میں آ گیا جزم کیا ہے, سمجھ میں آ گیا. اب میں آؤں گا آج اپنا جو اصل ہمارا آج کا ٹاپک ہے, مد اصلی. مد اصلی یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا. اب کیونکہ ہم وی آر ٹائم بار, میں صرف 2-3 چیزیں بتا کے میں ختم کرتا ہوں. مد اصلی کو عربی کا دوسرا نام ہے مد طبعی. عربی والے اس کو مد طبعی بولتے ہیں. طبعی ہے نا, مد طبعی. مد بولتے کھینچنے کو. آپ سنے ہوں گے مول صاحب بولتے بچوں کو مت کر کے پڑھو, یا مت کر کے پڑھو, تو کھینچ کے پڑھو, لمبا کرو. مد مانے لمبا,
खींचना, आवाज को दराज करके पढ़ना, किसको बोलते हैं मद? आवाज को दराज बोले तो लंबा करके पढ़ना, बोलते ना पापा दराज, तुम्हारी उम्र दराज हो यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो। अभी हम उर्दू टर्मिनोलॉजी सब भूल जा रहे हैं, उर्दू कम होते जा रही है, उर्दू मीडियम खत्म हो जा रही है, हमारे पूरा हमारा असासा जो है पूरा दीन का इस्लाम का हमारे पास ज्यादातर उर्दू में है, बच्चों को उर्दू नहीं आ रही, मसला है। तो मद माने खींचना, लंबा करना, दराज करना। गेसु दराज क्यों बोलते गेसु दराज? उनके गेसुआ बहुत लंबे रहते, मुर्शदों के गेसुआ लंबे रहते थे, गेसु दराज। गेसु दराज क्यों बोलते? क्योंकि उनके गेसुआ, उनके बाल लंबे थे, इसीलिए बोलते गेसु दराज। गेसु बोलते हैं बाल को, दराज बने लंबे, है ना। उसका बोलने का खाली वो नाम नहीं है, उसके अंदर पूरा छुपा हुआ है मतलब, है ना। तो ये क्या है? मध्य असली। असली माने आपको मालूम है असली, आप लोग पहचानते ना असली को, बोलते असली घी, असली शहद, एक नकली रहता है, एक असली रहता है हमारे पास, है ना। एक असली मुसलमान रहता है, एक नस्ली मुसलमान रहता है, एक असली रहता है, एक नस्ली रहता है। नस्ली नस्ल से चले आ रहा, नाम रख लिया, कुछ भी नहीं मालूम, नस्ली है उन्हें। असली कौन रहता है? उन्हें दीन पे चलने वाला रहता असली है। नस्ली खाली बा मुसलमान है बोल के मुसलमान है उन्हें चले। असली, मध्य असली किसको बोलते हैं? क्या है मध्य असली? और मध्य तबई जो बोलते हैं, तबई माने नेचुरल। ये मद वाकई में नेचुरल है, इसलिए अरबी वाले इसका नाम बहुत सही रखे, तबई मीन्स नेचुरल। तबई उर्दू में भी और अरबी में भी बोलते हैं नेचर को, नेचर को तबई, है ना। हम अक्सर बोलते हैं, एक साहब, अरे उनका इंतकाल हो गया, कैसा हुआ भाई? बोले तो नहीं, बीमारी नहीं थे, अच्छे खासे थे, नेचुरल डेथ है, अरे नेचुरल डेथ है, तबई मौत है, तबई मौत है बोलते हैं। तबई मौत, मर गए भाई। बोले तो वक्त आ गया था, मर गए, कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई हादिसा नहीं हुआ, कुछ नहीं, वक्त आ गया उनका, मर गए, उसको बोलते हैं नेचुरल डेथ। डॉक्टर देख के बोलता है कैसा मरे बोल के, उन्हें अगर वो करा, पोस्टमार्टम करा, तो बोलता नहीं कोई 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 रीजन नहीं है मरने का, नेचुरल डेथ है, उनका वक्त आ गया था, खत्म, उनका वक्त पूरा हो गया था, मर गए, कोई बीमार नहीं थे। तो तबई मीन्स नेचर, नेचुरल। मध्य तबई, मध्य असली। ये तो मैं खाली आज नाम के बारे में बताया, कल हम मध्य असली को पूरा पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मध्य असली आपको समझ में आ गया तो इसके बाद बहुत से 2-3 चैप्टरों में हम इसका इस्तेमाल है। ये चैप्टर समझ में आ गया तो 2 चैप्टर भी समझ में आते हैं अच्छे तरीके से। मध्य असली इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मध्य असली भरा हुआ है कुरान में, पूरे सूरों में भरा हुआ है। आपको मध्य असली अच्छा पकड़ लो, आप थोड़ा दिलचस्पी, थोड़ा पूरी तवज्जो से, अटेंशन से फोकस करके सुनो, कल का सबक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जो है टाइम बस नहीं हुआ इसको टेकअप करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ तक ला लिया। और क्योंकि मध्य असली के अंदर मध्य तबई में जज़म का इस्तेमाल है, जज़म का इस्तेमाल है, साकिन का इस्तेमाल है, तो मैं आपको पहले सुकून क्या है बता दिया आज, ताकि कल मैं मध्य असली को पढ़ा सकूं आपको। तो कल जो है इंशाल्लाह, कल क्लास शुरू होते ही वी विल स्टडी मध्य असली। मध्य असली पढ़ लेंगे तो आपकी तिलावत में बहुत सी चीजें मालूम हो जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, कल बताऊंगा। किसी को कुछ बात करना है, कोई पूछना है, कोई छोटे मोटे सवाल है तो कर ले, फिर हम दुआ पढ़ के आज का सेशन खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक जी, वालेकुम अस्सलाम। शेख, मैं मोहम्मद अशरफ बैंगलोर से। ये इसमें एक अब्दुल वहाद साहब जो है, आपने पहले नाम पुकारा था, अब्दुल वहाद कुछ नाम था, तो उन्होंने एक वजू का मसला बयान किया, इसमें वजू करने गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कल पढ़ा लेंगे उनसे, कोई मसला नहीं नहीं, वो वजू करने गए थे, बोले वो पढ़े, वो बाद में तो पढ़े वो, मगर वो बोले कि मैं वजू करने गया था, उन्होंने उज़र बताया। अच्छा, तो क्या ये वजू करके बैठना जरूरी है यहाँ पे? हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कुरान सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, वजू करके बैठे बेहतर है, अच्छी बात है जी। नहीं, मैं हम लोग तो वजू करके ही बैठे थे, मगर ऐसे ही पूछा मैं, क्या वजू जरूरी है क्या? अगर किसी वजह से खता हो जाता तो कोई मसला नहीं है,
आप हम कुरान लेके पढ़ना तो शुरू नहीं करें ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, अगर वजू से है तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है जी। नेक्स्ट सवाल क्या है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कल छुट्टी है या क्लास है हजरत? कल संडे है ना, इसीलिए पूछा। हमारी क्लास एवरी फ्राइडे के दिन छुट्टी रहेगी, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी पूरे दिन चलेंगी, सिर्फ फ्राइडे को फ्राइडे छुट्टी रहेगी। और कल जो पिछला कल फ्राइडे गया था, कल हमारी क्लास नहीं थी, और जी, कल जी। संडे को क्लास होंगी। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी मुझे ये प्रूफ में ना एक डाउट है, लाइक जी बोलिए। ज़ात को अगर हम हरकत लगाए तो प्रोनाउंसिएशन में करेक्ट पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ मुझे तो बहुत हाँ, हमेशा। जब मखरज में आएंगे जब बताऊंगा ज़ात कैसा पढ़ना। अच्छा अच्छा, मखरज, अच्छा वो आगे चल के है। हमारे वहाँ मखरज का सबक आएगा, जी क्योंकि जी। बीच में से कोई दूसरी चीज बीच में पढ़ा दिए तो ना ये सही सीखी। नहीं हाँ, समझ गया, सिलसिला आगे है। हाँ, ख्यालत का सिलसिला टूट जाता। मैं जी बताऊंगा, उसको कवर करूंगा आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, मैं कश्मीर से मेराजुद्दीन। मौलवी साहब, जब हमारे एग्जाम्स होंगे ना 4 महीने के बाद, जब अभी आपने बोला ना कि मध्य असली में अरबी में कहते हैं मध्य तबी, क्या ये उस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल इनके? ये कोर्स की तमाम चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको नोट डाउन करके रखना है। जी नोट डाउन करके, पूछ के नहीं करना है, हर चीज नोट करना है। ठीक है मौलवी ये साहब, लिखूं क्या नहीं लिखूं, ये जज्म लिखूं क्या नहीं लिखूं, हर चीज लिखना है। मैं कोर्स के बाहर थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, हर चीज कोर्स के अंदर की पढ़ा जी। नेक्स्ट। कभी कभी हम लाइटली लेते हैं ना, हम इनको इग्नोर करके छोड़ते हैं ना। नहीं। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, जज़म का सुकून बोल रहे थे आप? जी, जज़म को अरबिक में सुकून बोलते हैं। जी, जज़म को सुकून बोलते हैं, और साकिन को उर्दू में क्या बोलते हैं साहब? ये उर्दू में बोल रहा हूँ, साकिन उर्दू में भी वही बोलते हैं। अच्छा, साकिन उर्दू भी है? हाँ, साकिन सुकून वाले हर्फ को साकिन उर्दू में भी वही है। जी, और जज़म वाले हर्फ को क्या बोलते हैं? वही जज़म वाले हर्फ को, अब उसको जब सुकून बोलते हैं तो साकिन होता है, जाजिम बोलते हो। आप अरबिक टेक्नोलॉजी सीखिए बस, वो उर्दू वाली छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चलती जो किताबों में जो लिखा हुआ है वही सीखेंगे तो आपको समझ में आता। तो जाजिम बोलते हो वो नहीं। और तो दुआ पढ़ लेंगे, दुआ पढ़ के खत्म कर लेंगे क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पूछिए जनाब। हजरत बोल रहे कि मेरा नूरानी कायदा का पहला पेज सुन लीजिएगा, कल बाकी का होमवर्क जो दिए थे कल वो कल मैं सुनाऊंगा। जी अच्छा, घर वालों को सुना दीजिए, अच्छा याद कर लिए। सर तो मैंने घर वालों को नहीं, मतलब सही आवाज से मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पहले जी, पूरे 50-60 आदमियों का सुनते बैठा मैं तो पूरा टाइम 2 दिन लगेंगे खाली सुनने का। कोशिश करिए घर में सही पढ़िए आप। मैं थोड़े दिन के बाद क्या करने वाला हूँ, जरा थोड़ा टाइम जाने दीजिए। मैं एक ग्रुप तश्कील दूंगा, एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें पूरा आप पढ़ के वॉइस मैसेज मेरे को भेजना। होमवर्क, वो ग्रुप का नाम है होमवर्क, ग्रुप का नाम है होमवर्क। आप पढ़ के रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजना वो ग्रुप में, मैं सुनूंगा कौन कैसा पढ़ा हर एक का, क्योंकि पूरों को क्लास में सुना तो पूरा 1 घंटा आप लोगों के सुनने में खत्म हो जाता था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए मैं घर में बैठ के 2-4 घंटे में पूरों के सुनता हूँ बैठ के, नो प्रॉब्लम। तो टाइम आप लोगों का बचाने के वास्ते कर रहा हूँ मैं। आप थोड़ा ठहर गए तो मैं होमवर्क का ग्रुप तश्कील दूंगा, जनरेट करूंगा, उसको क्रिएट करूंगा, तो फिर आप पूरा पढ़ के रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजना, ठीक है? और कौन है, कुछ बोलना है किसी को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, एग्जाम का क्या मसला है, एग्जाम कब होगा? एग्जाम पूरा कोर्स खत्म होने के 3-4 महीने जब करीब आ जाएंगे, जब 3 महीने के बाद सवाल करना एग्जाम के बारे में। अच्छा। अभी आप जो है पहली क्लास में एडमिशन लिए, एग्जाम हो रहा है 10th क्लास के बाद। मैट्रिक का एग्जाम कब होता है? 10th क्लास का एग्जाम है। ठीक है। आप पहली क्लास में ज्वाइन होके मेरा 10th क्लास का वो एग्जाम कैसा रहेगा, कब होगा, क्या
अरे अब ये बहुत टाइम है भाई, जरा पढ़ो तो सही पहले। ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको, उसके मॉडल पेपर शेयर करूंगा, हर चीज बताऊंगा, लेकिन हर चीज अपने वक्त पे आएंगे ना, जब सब आपको बताया तो समझ में भी आएंगे, अभी आप कुछ मालूम नहीं है ना उसके बारे में ज्यादा, पहले पढ़ लेंगे फिर कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ पढ़े। जी सब लोग माइक खोले, पूरे लोग माइक खोले, अब खोले माइक, क्लास में खोलते ना आप लोग, अब खोले। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा परवरदिगार और बड़ी ही इज्जत वाला है, और बड़ी ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से बड़ी है उन उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम हो तमाम तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारी तारीफें तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह।